So though we had done this concept of deficient demand that day, I'm revising it again. Deficient demand is a situation where aggregate demand falls short of aggregate supply corresponding to full employment. ठीक है, AD is less than AS corresponding to full employment. Corresponding to full employment. Otherwise इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, AD AS के इक्वल है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का जो AS है ना, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन AS एंड AS corresponding to full employment? AS is whatever the producers are planning to produce. ठीक है, तो वो कितना प्रोड्यूस करेंगे? जितना लोग चाहते हैं. लेट अस सपोज लोग 80 करोड़ रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने को तैयार हैं. तो यू बीइंग प्रोड्यूसर्स विल प्लान टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर 80 करोड़, यानी AD is equal to AS, but for producing this 80 crore worth of goods, you need to employ say only 40 lakh people, and there are 60 lakh people in your country who are willing to work, but you are giving work only to 40 lakh people. Why? Because if you fully employ the economy, that is, if you hire 60 lakh people, you will be able to produce 100 crore of goods and services. Okay, but you are producing only 80 because people are planning to buy only 80 crore, which means currently your aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment. आप अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉय नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? फुल एम्प्लॉय करोगे तो 100 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे, लेकिन लोग कितना करना चाहते हैं? 80 करोड़ के. इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए 20 करोड़ रुपए की डिमांड की कमी है. अगर लोग कहते हैं हाँ भी हमें भी 100 करोड़ के गुड्स खरीदने हैं, तो आप 100 करोड़ के बनाते हैं. 100 करोड़ के बनाने के लिए आपको 60 लाख पीपल एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है. लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है. सिचुएशन क्या है? पीपल आर विलिंग टू बाय गुड्स फॉर ओनली 80 करोड़, राइट? सो यू विल बी प्रोड्यूसिंग ओनली 80 करोड़, which means your aggregate demand is less than your aggregate supply corresponding to full employment. So this is the problem of deficient demand in the economy. How can we show this diagrammatically? For that, firstly, label the diagram. Here we take level of income and employment, साथ साथ बनाएंगे आप. Here we take AS and AD. AS का 45 डिग्रीज पे होता है, तो आग लगा के मिड पॉइंट से AS ले लीजिए. ठीक है. नाउ व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन. इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. दिस इज द AD. सो इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E. Corresponding to E, you will employ ON, number of people. ठीक है. But if you want to maintain full employment equilibrium in this economy, your aggregate demand should be this ADF. People, C plus I curve should be this. It should be above the actual AD. यानी ये डिजायर्ड AD है, ये हम चाहते हैं. ठीक है, ये हमारी डिजायर है. वी वांट द इकोनॉमी टू हैव दिस कर्व, दिस एग्रीगेट डिमांड, बट एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड इज रिफ्लेक्टेड बाय ADE. ठीक है, विच मीन्स यू नीड टू हैव, इसको आप यहां से पॉइंट लगा लीजिए, FMG. फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए एग्रीगेट डिमांड कितनी
लीजिए FM, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम FM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, which will ensure full employment in the economy. But actually our AD is reflected by ADE. So we, that is the people of the country, are planning to buy goods worth only GM. ठीक है? So we want to have FM amount of output to maintain full employment. But actually people are planning to buy GM amount of goods. So कितनी डिमांड की कमी है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए? FG. This FG is known as deficient demand. जिस इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होगी उस इकोनॉमी में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, situation where people are willing to work but they do not get work at prevailing wages. So this much people are willing to work but we are giving work only to ON amount of labor. So NM amount of labor are what? Unemployed, and they are unemployed against their wishes. So this is known as involuntary unemployment. ठीक है, इस इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। कल को अगर आप चाहो कि ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप इस एक्सेस कैपेसिटी को यूज करके आप अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हो। दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। व्हाट कॉजेस डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी? तो उसके लिए अगेन एक्सक्यूज causes of aggregate demand, sorry, deficient demand. This situation, इस सिचुएशन को हम deficient demand कहते हैं, where AD is less than AS corresponding to full employment. What is AD? AD is C plus I plus G plus X minus M. This is less than AX. ठीक है? So which means deficient demand arises because either there is reduction of consumption expenditure in the economy, or there is reduction of investment expenditure or government expenditure, और एक्सपोर्ट्स आर लेस और इंपोर्ट्स आर मोर। आपके ओवरऑल मार्क्स जो है वो आए 360, आपको एडमिशन के लिए चाहिए 400, ठीक है, तो आपके मार्क्स डेफिशिएंट है। क्यों डेफिशिएंट है? आइदर अकाउंट्स में कम है और इकोनॉमिक्स में कम है, या मैथ्स में कम है, या बिजनेस स्टडीज, ठीक है। सो वन बाय वन, रिडक्शन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है। Why is it so? It could be due to decline in MPC. These days MPC has decreased because now people are believing in saving more because they are, they have seen uncertainty, uncertain times उन्होंने देख लिए, अपनी लाइफ टाइम में विटनेस कर लिया कि अनसर्टेनिटी है, भी लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, कभी भी काम बंद हो सकता है। जो लोग कभी सोचते ही नहीं थे कि हमारे काम को क्या होगा, वी आर तो अनअफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल्स, से डॉक्टर्स, दे वर अनअफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल्स, बट इवन डॉक्टर्स क्लिनिक्स वर शट डाउन फॉर 2-3 months। काम बेटे जो कोविड सेंटर बने ना उनका ही बड़ा ही है, वो कम हुआ, इकोनॉमी का एमपीसी कम है, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बेटे जब भी वर्ड आए तो इट इज एग्रीगेट प्लान एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। तो टोटल इकोनॉमी का टोटल खर्चा कम हुआ या नहीं, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Why has consumption expenditure declined? Because of fall in MPC, right? Another, reduction in investment expenditure.
इन्वेस्टमेंट अगेन आजकल के टाइम पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा हुआ है, आजकल वैसे कम हुआ है। कम क्यों किया गवर्नमेंट ने? ताकि लोग ज्यादा बोरोइंग करके और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे पहले, लेकिन बिजनेस एक्सपेक्टेशन अभी भी लो है, ठीक है, रिस्क अभी भी ज्यादा है। हम इन्वेस्ट कर दें, प्रोडक्शन कर दें, आगे फिर लॉकडाउन लग जाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनी हुई है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन लो है। तो जब बिजनेस एक्सपेक्टेशन लो होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है, ठीक है। सो ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, there might be the problem of deficient demand in the economy. Then government expenditure, reduction in government expenditure. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लेस ऑन से इन्वेस्टमेंट और ऑन कंजम्पशन नीड्स। गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो इट में ऑल्सो कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन दी इकोनॉमी। लेस एक्सपोर्ट्स, अभी जैसे लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मूवमेंट गुड्स की नहीं थी, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स कम हुए। तो एक्सपोर्ट इज वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब लोगों का खर्चा कम हुआ, इसका मतलब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है। इंपोर्ट्स अगर बढ़ जाए, अगर इंडिया में या डोमेस्टिक कंट्री में प्राइसेस राइज करें, तो पीपल वुड रिजॉर्ट टू इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, which would cause the problem of deficient demand in the economy. Is it clear? Now, problem of deficient demand gives rise to the problem of deflationary gap. Actually, deflationary gap is a synonym of deficient demand. It is another name for deficient demand. क्यों? क्योंकि जिस इकोनॉमी में बेटे डेफिशिएंट डिमांड है, उस इकोनॉमी में प्राइसेस फॉल करते हैं, जनरल प्राइस लेवल गिरता है। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। सो डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू द सिचुएशन ऑफ deflationary gap in the economy. What is deflationary gap? Gap है ना ये word, gap means shortfall. What is deflationary gap? It is the shortfall in the aggregate demand required to maintain full employment in the economy. To maintain full employment equilibrium is the ideal situation. हर इकोनॉमी चाहती है उसकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे हो, इक्विलिब्रियम अटेन करे और फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम अटेन करे। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए कितनी डिमांड की कमी है? जितनी डिमांड की कमी है, यानी जितना गैप आ रहा है टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट गैप इज गिवन बाय डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर? So it is the shortfall in aggregate demand from the level required to maintain full employment equilibrium in the economy. अगर आपको नहीं लर्न होता, you can write the definition of deficient demand. ठीक है? What is deflationary gap? Otherwise, it is the shortfall in aggregate demand required to maintain full employment equilibrium in the economy. It is measured by deficient demand. Higher the deficient demand, more will be the deflationary gap. Deflationary gap is a measure of deficient demand. Deficient demand को मापना है, किससे मापना है? Deflationary gap. Higher the deficient demand, more will be the deflationary gap in the economy. So how do we measure deflationary gap? Deflationary gap is basically the difference between full employment AD, desired AD, and actual AD जो exist कर रही है economy. This is deflationary gap. ठीक है? अब causes of deflationary gap are same as causes of deficient demand. Now consequences of deficient demand or consequences of deflationary. All right, there was some network issues. Can you hear me now?
All right, beta, what are the consequences of deficient demand? Okay, consequences of deficient demand, यानी अगर एक इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है, डिफ्लेशनरी गैप है, तो उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके? टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड are facing the problem of deficient demand. So what are the consequences of deficient demand? See, okay, she is telling me कि आवाज ठीक थी, इको नहीं कर रही थी. Now is it okay, Diksha? Okay, fine. So, beta, whenever aggregate demand fails to catch up with full utilization of resources, what is the problem of deficient demand? When AD fails to catch up with the full utilization of resources, what happens is producers build up inventory stock beyond what they desire. अगर डेफिशिएंट डिमांड है, यानी अगर आपने 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस कर ली है और लोग सिर्फ 80 करोड़ की लेने को तैयार हैं, आप फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करके 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस अगर कर लेते हो, ठीक है, तो 20 करोड़ का जो स्टॉक है, दिस इज बियॉन्ड व्हाट यू डिजायर, है ना? आप प्रोड्यूसर हो, आपने सबको काम पे लगा दिया, पूरी क्लास को काम पे लगा दिया, आपने 100 चार्ट बना लिए, टीचर कह रही है मेरे को तो 80 चाहिए, ठीक है? तो ये एक्स एंटे कंसेप्ट है, दिस इज योर प्लानिंग गोइंग ऑन, ठीक है? आपको मैंने इंचार्ज बनाया, आपने कहा ठीक है हम इतने लोग हैं, हम सबको काम पे लगा दो, मैम 100 चार्ट बन जाएंगे, बट आई वॉन्ट ओनली 80 चार्ट्स, ठीक है? सो इफ इट so continues, if you fully employ the resources, you will be having an extra stock with you, you will be building up inventory beyond what you desire. टीचर को तो 80 दे दिए, बाकी 20 का आप क्या करोगे, ठीक है? दिस इज बियॉन्ड व्हाट यू डिजायर. नाउ दिस अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक would force you to plan for the lesser production in the coming year. आप बोलोगे अरे ये 20 तो बच गए, अब अगली बारी हमने नहीं प्रोड्यूस करने, अगली बारी हम कम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू मेंटेन अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, आप अपने पास एक्सेस स्टॉक नहीं रखना चाहते हो, ठीक है? सो इंप्लाइंग reduction in the planned output, that is less aggregate supply, so reduction in AS would imply reduction in planned output, consequently which would lead to lower level of employment. जब सबको काम पे लगा के 100 चार्ट बना रहे थे, रिक्वायरमेंट 80 की थी, तो आप क्या कहोगे, हम क्यों 100 बनाएं, हम 80 बनाएंगे. जब 80 बनाने की बारी आएगी तो क्या होगा, कुछ बच्चे फ्री रह जाएंगे, दैट इज दे विल बी अनएम्प्लॉयड. आप उनको बोलोगे आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है. सो दिस वुड लीड टू रिडक्शन इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, ठीक है? In short, in the situation of deficient demand, economy is driven to the low level of income, output and employment. ये आपने these are your key words which you have to memorize. MCQ में भी आ सकता है. Consequence of deflationary gap in one line. Economy is driven to the situation of low level of income, low level of output, low level of employment. ऐसा ही हो रहा है अभी बेटे, आपको इतना अच्छा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिला है, दो द ईयर हैज बीन वर्स्ट ईयर, बट देन यू कैन रिलेट योर कॉन्सेप्ट्स टू इट, ठीक है? आपको क्या लग रहा है, आप इतनी न्यूज सुनते हो, अगर नहीं भी सुनते कहीं ना कहीं से कानों में पड़ जाता है कि इकोनॉमी की स्टेट क्या है.
आउटपुट कम हुई है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों की इनकम कम हुई है। ये किसका कॉन्सिक्वेंस है? डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सिक्वेंस। सो इकोनॉमी इज ड्रिवन टू द स्टेट ऑफ low level of income output and employment. Is it clear? Any child having any doubt? Okay. Problem of excess demand. So let us now discuss what is the problem of excess demand. Excess demand is a situation where aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment. By fully employing the resources, you are able to produce 100 charts. Your class in charge is asking for 120 charts. This is the problem of excess demand. She is requiring more, you are able to produce less. Problem क्या हुई? Demand ज़्यादा है ना? Excess demand. A situation where AD is greater than AS corresponding to full employment. I am repeating the mistake which is committed by maximum students. Now only I can see only 15 students in the class. ठीक है? Rest of the students, they will write excess demand as when AD is greater than AS. This is wrong, outrightly wrong. आप सोचो कि भाई सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा तो हाफ मार्क मिल जाएगा. द कंसेप्ट इज रॉन्ग. ये कंसेप्ट ही गलत कर दिया आपने. इट इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि एडी एएस के बराबर है, एएस से कम नहीं है, एएस के बराबर है. किसके बराबर नहीं है? उस एएस के which is required to maintain full employment. Is it clear? So it is the situation where AD exceeds AS corresponding to full employment. ठीक है? So let us make the diagram of excess demand. आप मेरे साथ साथ बनाएंगे बेटे और ध्यान से बनाना है. On x-axis, level of income and employment we will be taking. On y-axis, AD and AS. 45 degrees AS. यहां तक पहले बना लीजिए आप, उसके बाद मैं बनाऊंगी. Gunkirat, you are supposed to work in the class to make the diagram. You too. Now, this is desired situation. This is the AD which is required to maintain full employment. We want God. We want the economy to attain equilibrium at this point. ये हमारा डिजायर्ड सिचुएशन है. कोई भी इकोनॉमी यही चाहती है कि हम इक्विलिब्रियम भी अटेन करें और फुल एम्प्लॉयमेंट भी आए. लेकिन इस इकोनॉमी की समस्या ये है कि इसका जो एक्चुअल एडी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है. अब देखो क्या सिचुएशन बन रही है इस इकोनॉमी में. अगर हम ओएन वर्कर काम पे लगा देते हैं तो हमारी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड है और हम ईएन अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड वी डिजायर दैट पीपल शुड डिमांड ईएन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इफ इट इज सो, एडी विल बी इक्वल टू एएस एंड full employment will also be ensured in the economy. But actually AD is shown by ADE, which means people are demanding to buy goods worth FN.
ADF से ADE तक एक्सटेंड कर दीजिए. So this is desired AD, right? This is actual AD. Actual AD is less than desired one. So क्योंकि ये ज्यादा है उससे, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड. It gives rise to the situation of excess demand. ठीक है? This problem is also known as the problem of inflationary gap. What is inflationary gap? It is the extent by which AD exceeds AS corresponding to or required to maintain full employment. हमें इतना एग्रीगेट सप्लाई चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए, या हम चाहते हैं लोग इतना खर्चा करें, लेकिन लोग इतना खर्चा करने को तैयार हैं, कितना ज्यादा खर्चा करने को तैयार है? FE. So this causes inflationary gap in the economy. Why it is called as inflationary gap? Because the problem of excess demand, जिस भी इकोनॉमी में excess demand की प्रॉब्लम होगी, उस इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल राइज करेगा. वो कैसे राइज करेगा? बेटे देखो, प्राइसेस कब कंट्रोल में रहते हैं? जब डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम बना रहता है. जब डिसइक्विलिब्रियम आया, प्राइसेस या बढ़ते हैं या कम होते हैं. ठीक है, दो तरह का डिसइक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम है ना, तो डिसइक्विलिब्रियम, ये डिसइक्विलिब्रियम है. When either demand is greater than supply or demand is less than supply. ये दोनों situations disequilibrium की situations है. ठीक है, अगर डिमांड सप्लाई को एक्सीड करती है तो क्या होगा? आप कैंटीन में गए, ठीक है, वहां पे 10 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, 10 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, आप 20 डिमांड कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड है, वो और कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सकता, तो एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो प्राइसेस अपवर्ड राइज करते हैं. ठीक है. दूसरी सिचुएशन, डिमांड इज लेस देन सप्लाई. इसमें कंपटीशन सेलर बायर में हो जाता है ना. बायर कहता है, आप बोलोगे मेरा बर्थडे है, मेरे को दे दो सारी की सारी बॉटल्स, मैं ज्यादा प्राइस दे दूंगा. बायर में कंपटीशन हो गया ना, तो प्राइसेस बढ़ते हैं. यहां पर सेलर में कंपटीशन होगा. क्यों? क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. तो आप बोलोगे मेरे से ले लो, मैं सस्ते में बेच दूंगा, तो प्राइसेस कम होते हैं. अब इन दिस सिचुएशन ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इज मेंटेन्ड, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट वी नीड टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स, बट वी कांट एम्प्लॉय मोर वर्कर. जितने लोगों ने कंसेंट दिया था, जितने बच्चों ने कंसेंट दिया, वो सारे के सारे स्कूल आ रहे हैं. हमारे पास और कोई बच्चा है ही नहीं काम कराने को. फुल एम्प्लॉयमेंट से तो नहीं ना. अब क्या होगा? एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा. स्टॉक नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयड है, कोई अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी नहीं है इकोनॉमी में. बेटे एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम वर्ड यूज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. रिसोर्सेज, चाहे मशीनरी है, चाहे लैंड है, ये सब रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं. जब हम कहते हैं ना इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है या फुल एम्प्लॉयमेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रिसोर्सेज, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लेबर. ठीक है, तो यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं खाली, सारी मशीनें फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, सारा लेबर काम पे लगा हुआ है. ठीक है, तो आउटपुट और बढ़ ही नहीं सकती. लोग हैं कि हट ही नहीं रहे, वो कहते हैं हमें ज्यादा गुड्स चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा? हम ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. देयर विल बी अपवर्ड राइज इन द प्राइसेस. दैट इज इन्फ्लेशन विल बी देयर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप. क्लियर? इन्फ्लेशनरी गैप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द एक्सटेंट टू विच एडी बिकम्स ग्रेटर, the extent to which AD becomes greater than AD
required to maintain full employment. The extent to which AD becomes greater than AD required to maintain full employment. How much AD is required to maintain full employment? EN. How much AD is there in the economy? FN. तो कितनी extent से ज्यादा है? To the amount of FE. So this gap is known as inflationary gap. ठीक है? It measures the extent of excess demand or the size of excess demand in the economy. Clear? Greater the excess demand, higher will be the inflationary gap. Now, what causes inflationary gap? What causes inflationary gap? AD greater than AS है, corresponding to full employment. AD is the sum total of C, I, G, X minus M. तो यहां तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इकोनॉमी को रिवाइवल पैकेज मिल गया, गवर्नमेंट ने 2-3 बारी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमी को रिवाइवल पैकेज दिया, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ गई, तो पीपल और यहाँ लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, तो दे हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर, दैट इज देयर एमपीसी हैज इंक्रीज्ड, है ना। लॉकडाउन के बाद वैसे भी जब हमने इतनी देर तक शॉपिंग नहीं की या घर की कोई चीजें नहीं खरीदी, तो एकदम से अब हमारी इनकम आने, काम पे हमने जाना शुरू कर दिया, सैलरीड को सैलरी मिलनी शुरू हो गई, बिजनेसमैन को प्रॉफिट आना शुरू हो गया, दे विल ऑल्सो स्टार्ट स्पेंडिंग मोर। आपने देखा है इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, पीपल आर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो कंजम्पशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एमपीसी, एडी विल इंक्रीज, it will give rise to the problem of excess demand. और इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर खुद भी किया है, लोगों को भी दिए हैं इंसेंटिव्स ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो अगेन एडी इंक्रीज करेगी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक हो गया, इंटरनेशनल मूवमेंट हो रही है शुरू, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने हो गए शुरू, तो एडी विल इंक्रीज। और अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे, there will be again increase in aggregate demand, which will lead to the problem of excess demand in the economy. ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या रह गया हमारा, consequences of inflationary gap। बेटे चाहे inflationary gap आए चाहे excess demand आए, ठीक है, सेम है, आंसर इज सेम, राइट। जो कॉन्सिक्वेंसेस डेफिशिएंट डिमांड, ये एक्सेस डिमांड के हैं, वही कॉन्सिक्वेंसेस इन्फ्लेशनरी गैप के कॉजेस भी, ठीक है। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप? व्हेन एडी इंक्रीजेस बियॉन्ड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, गवर्नमेंट का जनरली, हाँ कोई भी एक्सपेंडिचर हो गवर्नमेंट का, ये नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ एक्सपेंडिचर, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, उससे इनकम बढ़ेगी ना, लोगों की खर्चा बढ़ेगा लोगों का। चलो लेट्स कॉल इट अ डे।